Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students of senior 2 and senior 3. Inshallah everything will be going good at your side. Miss Bashfaq is here with an other online session for biology, and in today's class I am going to start a new chapter, that is coordination and response. So students, you are advised to watch all the videos thoroughly, as this is a new topic and it is very important to build or to have the basic concepts or basic knowledge of any new topic for better grip on it. So let's start the chapter. What are the learning outcomes of this chapter? In this chapter you will learn about the role of the nervous and hormonal systems in coordinating the activities of the body. You will learn the structure and function of the eye. You will learn the role played by the brain and spinal cord in a reflex action, and you will learn that how the blood glucose level is regulated by insulin and glucagon, or you will learn the role of the hormone adrenaline. Clear? So students, as you know that our body has trillions of cells which are organized in different tissues. These tissues don't work independently, they work in coordination with each other. It means that they perform different functions at certain times and at certain rates depending upon the needs of the body as a whole. For instance, the working together of muscles to bring about movement in any part of your body is a good example of coordination. ठीक है? Or like human body, the animals and even plants exhibit coordination. For example, leaves of touch me not plant are closed down when touched. Okay, obviously we are multicellular organisms, so our body is made up of trillions of cells. ठीक है, और हमारे जो cells हैं obviously वो independently काम नहीं करते, वो coordination में काम करते हैं. So all the living things react to changes around them. जब उन्हें coordination करना होता है, या ये वो coordination करते क्यों हैं? Obviously जब उनको react करना होता है किसी भी action को, एक्शन का रिएक्शन जब उनको देना हो तो इट मीन्स कि उनको कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना है. सो लिविंग थिंग्स रिएक्ट टू चेंजेस अराउंड देम, और ऑब्वियसली दिस एबिलिटी इज नोन एज सेंसिटिविटी. You know that sensitivity is the characteristic feature of living organism. So a living organism is able to react to changes in its surroundings. Animals and plants are sensitive to changes in their environment, and they can detect and react to these changes in ways which are beneficial to them. Obviously वो जब भी रिएक्ट करेंगे वो अपने फ़ायदे के लिए करेंगे. जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट करेंगे, मूव करेंगे या किसी चेंज को डिटेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उसके रिएक्शन हमेशा वही देंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा. अ चेंज इन द एनवायरनमेंट or an external influence causes the organisms to react in a predictable way. अच्छा, such a change or external influence. अच्छा, जब हम environment कह रहे हैं, so we have two types of environments, the external and the internal environment, because changes may occur around us और inside of our body. यानी जो हम में चेंज हम फील करते हैं वो चेंज हमारे सराउंडिंग्स में भी हो सकता है और हमारा इनसाइड बॉडी भी चेंज आ सकता है. इट मीन्स कि organisms can detect the changes in the environment and respond to the changes in certain ways. And environment means कि we have two types of environments. The external environment means physical and chemical conditions outside of an organism's body, or internal environment means the physical and chemical conditions of the tissue fluid surrounding the tissues of an organism. It means कि inside हमारी body में जो change आ रहा है वो change बॉडी टेम्परेचर में भी हो सकता है, मे बी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, आपका ब्लड प्रेशर है, कोई भी आपका बॉडी का इंटरनल चेंज है, दैट इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट. तो आपका ये जो चेंज है दैट इज़ नोन एज स्टिमुलाई. इट मीन्स कि व्हाट इज़ एन स्टिमुलाई? स्टिमुलाई इज़ द चेंज or the external or internal influence of the body, that is known as the stimuli. Or any change in the environment, either internal or external, is known as stimuli. यानी any change in the environment that causes an organism to react is called as stimulus. हर वो change जो आपकी body को react करवाए that is a stimulus. okay, plural stimuli होगा.
So any change is stimulus that causes an organism to react. अच्छा, अब उसके जवाब में क्या होगा? The reaction of an organism to a stimulus is known as a response. ठीक है, आपकी बॉडी जो उस स्टिमुलस के रिएक्शन में या उसका रिस्पॉन्स देगी, दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज, दैट रिएक्शन इज नोन एज अ रिस्पॉन्स. And this response of living organism to a stimulus is termed as sensitivity or irritability. Clear? This is the basic feature, characteristic feature of living organisms. और वो क्या है? That is sensitivity. Sensitivity is the response of living organisms to a stimulus. To a stimulus. आपकी बॉडी का किसी भी स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है, दैट इज कि वो आपकी बॉडी की सेंसिटिविटी है. So now the stimuli, the changes in the environment to which living organisms respond are called stimuli. So this is stimuli. अब examples of stimuli: heat, cold, sound, smell, taste, touch, pressure, gravity and water. Living organisms respond to stimuli in the form of body movement, or an organism usually responds to a stimulus by moving in a way that benefits itself. अच्छा, अब एग्जाम्पल्स देखो आप, इसके आपके पास क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स नीड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, so they grow towards the light. This response occurs over time. In this situation, light is the stimulus. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, तो ऑब्वियसली वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं, दे मूव टूवर्ड्स द लाइट. तो इन दिस केस लाइट इज द स्टिमुलस, और ऑब्वियसली उनका रिस्पॉन्स क्या हुआ? मूवमेंट. सेकेंड एग्जाम्पल इज Euglena is a single-celled organism, makes food by photosynthesis, and Euglena swims towards the light. Again, the light is the stimulus. अच्छा, ये इन पूरे केसेस में लाइट शो किया गया स्टिमुलस. Third example is कि some organisms such as cockroaches move away from the light. They hide in dark areas during the day. Again, the light is the stimulus. ठीक है, और उसके रिएक्शन में रिस्पॉन्स दे रहे हैं डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो the ability to respond to a stimulus is termed as sensitivity. अच्छा, अब जब हम एक्शन एंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, या हम स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी हमेशा कोऑर्डिनेटेड वे में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर मल्टी सेलुलर है तो ऑब्वियसली उनके बॉडी सेल्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं. नाउ द कोऑर्डिनेशन इज कि फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर. The working together of various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. जब बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके स्टिमुलाई के रिएक्शन में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं, और जिसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं. अच्छा, एनिमल्स में ये जो पूरा सिस्टम है, जो कोऑर्डिनेशन है, दैट इज़ डन बाय टू सिस्टम, दैट इज़ नोन एज नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, ऑब्वियसली हम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ही पूरे कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स में पढ़ेंगे. और प्लांट्स में जब हम ये कोऑर्डिनेशन देखते हैं, तो दैट कोऑर्डिनेशन इज डन बाय केमिकल सब्सटेंसेस, और वो होते हैं प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट थिंग, नाउ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. सो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज डन बाय टू सिस्टम्स, द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. अच्छा, आपकी बॉडी हो, एनिमल्स की बॉडी हो, ऑब्वियसली द बेसिक थिंग इज स्टिमुलाई. ठीक है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. अच्छा, एग्जाम्पल एक और अपने अपने जो सराउंडिंग से आप एग्जाम्पल लें कि इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर वॉकिंग अलोंग एंड समवन एक्सीडेंटली kicks a ball at you. ठीक है, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? यू विल प्रॉबेबली मूव आउट ऑफ द वे. अच्छा, अब और इमेजिन करें दैट कि यू आर वेरी हंग्री एंड यू स्मेल फूड कुकिंग, देन योर माउथ विल वाटर, दैट इज प्रोड्यूस सलाइवा. दीज टू सिंपल एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. ठीक है, अपने हिसाब से सोचो तो ये आपका स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है. इन these conditions a stimulus is a change in your environment. अब वो चेंज क्या आया था? द अप्रोचिंग बॉल, आपकी तरफ बॉल आ रही है, दैट इज द स्टिमुलस. और द स्मेल ऑफ फूड.
ठीक है, ये भी एक स्टिमुलस था। रिस्पॉन्स क्या हुआ? इन फर्स्ट कंडीशन आपने क्या किया? ऑब्वियसली यू मूव्ड आउट। और इन द सेकेंड कंडीशन जब आपको एक फूड का स्मेल आया तो ऑब्वियसली सिक्रीटिंग सलाइवा, आपके मुंह में पानी आ जाता है, ये भी रिस्पॉन्स है। सो द सिंपलेस्ट रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम is to link together और coordinate a stimulus with the response। ठीक है, अच्छा आपके पास ये जो आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हम कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली एंडोक्राइन सिस्टम हम सेकंड उसमें पढ़ेंगे। अभी हम पूरे जो स्टार्टिंग के हमारे टॉपिक्स हैं दैट आर ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। ठीक, तो इट मीन्स अभी हम सिर्फ नर्वस सिस्टम को अगर हम सोचें तो सिंपलेस्ट रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम इज टू लिंक टुगेदर और कोऑर्डिनेट अ स्टिमुलस विद द रिस्पॉन्स। सिर्फ आपका नर्वस सिस्टम मीन्स क्या कर रहा है? आपके स्टिमुलस को आपके रिस्पॉन्स के साथ कोऑर्डिनेट करवा रहा है। सो द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ऑब्वियसली हम इनको भी इन द नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल। नाउ व्हाट आर रिसेप्टर्स? जब आप स्टिमुलाई कह रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स। मीन्स स्टिमुलाई को या चेंज को फील कौन करता है? ऑब्वियसली दे आर रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स आर यानी स्टिमुलाई आर डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच रिसीव द स्टिमुलाई एंड पास द मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी नर्वस सिस्टम की तरफ मैसेज को जो भेज रहे हैं थ्रू द सेंसरी नर्व्स। ऑब्वियसली सारे टॉपिक्स अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब रिसेप्टर्स क्या है? ऑब्वियसली वी हैव फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर मीन्स इन द आई टू डिटेक्ट लाइट। We have phonoreceptors. Phonoreceptors in the ears to detect sound. We have olfactory receptors in the nose to detect smell. ठीक, अच्छा we have gustatory receptors in the tongue to detect taste, और we have tango receptors in the skin to detect touch। अब ये सब क्या है? ये देखो आपके सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई हैं। ठीक है, मोस्टली जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का हम पढ़ेंगे वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम ऑब्वियसली कोऑर्डिनेटेड वे में ही चल रहे होते हैं। ठीक है, बट अभी हम जरा नर्वस सिस्टम के साथ चलते हैं। नाउ व्हाट आर इफेक्टर्स? देखो रिसेप्टर्स जो कि रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलाई, व्हाट आर इफेक्टर्स जो कि रिस्पॉन्स देंगे। इन द केस ऑफ नर्वस सिस्टम तो ऑब्वियसली इफेक्टर्स आर द मसल्स। ठीक है, आपकी बॉडी में जितने मसल्स होते हैं वो इफेक्टर्स हैं। वो मसल्स ऑब्वियसली वो मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, स्केलेटल मसल्स की तरफ ज़्यादा है ये बात, तो जो मूवमेंट करवाएं या जो आपको रिस्पॉन्स करवाएं दैट आर द इफेक्टर्स। तो इन द नर्वस सिस्टम इफेक्टर्स आर द मसल्स, और इन द हार्मोनल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम द इफेक्टर्स विल बी द ग्लैंड्स which respond to the information from the brain and spinal cord through the motor nerves। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? जब हम नर्व्स पढ़ेंगे ऑब्वियसली जब आपके मैसेजेस जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रही है या पिक एंड ड्रॉप हो रहे हैं मैसेजेस, तो ऑब्वियसली आपको कुछ रूट्स चाहिए। उन रूट्स पर कौन आपके मैसेजेस को लेके जाता है? वो होती हैं नर्व्स। ठीक, सो वी हैव three types of nerves: sensory nerves, relay nerves and motor nerves। sensory nerves आपके पास क्या होते हैं? special nerves which carry information from the sense organs to the brain and spinal cord। एंड मोटर नर्व्स क्या होते हैं? वो नर्व जो कि मैसेज को वापस लाएं फ्रॉम द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। अगर आप थोड़ा सा आर्टरीज एंड वेन्स और सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो ब्लड को की मूवमेंट के लिए, ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ना। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वेन्स जो है वो वापस लाती हैं ब्लड को। इन द सिमिलरली वी हैव डिफरेंट नर्व्स, और नर्व्स का क्या फंक्शन होता है? टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो सेंसरी नर्व्स क्या करते हैं? आपके इन्फॉर्मेशंस को सेंस ऑर्गन से लेके जाते हैं टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर आपके बॉडी के क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक है। और कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, वो जो रिस्पॉन्स देते हैं ऑब्वियसली उनको स्पेशल नर्व्स आपके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाते हैं कि भाई ये रिएक्शन दें, ये रिस्पॉन्स करें। एंड दीज नर्व्स आर नोन एज मोटर नर्व्स, ठीक है। रिले नर्व्स इंटरमीडिएट नर्व्स होते हैं जो हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे। मोस्टली आपने सेंसरी और मोटर नर्व्स को अपने जहन में रखना है। सेंसरी नर्व्स सेंस करके मैसेज लेके जा रही हैं, इन्फॉर्मेशन लेके जा रही हैं, और मोटर नर्व्स वापस ला रही हैं मैसेज के आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स देना है। क्लियर स्टूडेंट? सो नाउ द व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर। अब देखो, अगर हम एक लिंक्ड वे में देखें तो हमारा पूरा जो ये बिहेवियर होता है ये कैसा है। अब फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज स्टिमुलस, a change in the external और इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ नर्वस सिस्टम में ज़रा फोकस करेंगे। सो साउंड, स्मेल और रिसेप्टर, कौन स्टिमुलस को रिसीव करता है? दैट आर रिसेप्टर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स, स्पेशल ऑर्गन्स विच कंटेन सेंसरी नर्व सेल्स। वो क्या करते हैं? दे कन्वर्ट स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉल्ड इम्पल्सेस। ऑब्वियसली हमारा पूरा सिस्टम जो है वो इम्पल्सेस पे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे चलेगा। आपका जितने बॉडी में मैसेजेस जा रहे हैं वो आ रहे हैं, वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सो आपके रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं? स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो कि सेंसरी नर्व सेल्स होते हैं, जो आपके स्टिमुलस को, वो जैसा भी स्टिमुलस है, वो लाइट है, वो साउंड है, वो स्मेल है, वो हमेशा उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो आपके नर्व्स के थ्रू मूव करे, ठीक है। तो हमेशा आपके रिसेप्टर्स आपके मैसेजेस को कहाँ भेजते हैं? टूवर्ड्स द कोऑर्डिनेटर, दैट इज द CNS। CNS आपके पास क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, वो क्या करेंगे? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिसीव इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट बिहेवियर। एग्जाम्पल, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं? अच्छा, वो मैसेज कहाँ भेजेंगे? टूवर्ड्स द इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स मसल्स भी हो सकते हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं, इफेक्टर्स ग्लैंड्स भी हो सकते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करेंगे आपकी बॉडी को, के आपके बॉडी जो स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स दे रही है, वो या तो मूवमेंट होगा, मसल्स के मूवमेंट होंगे, या वो ग्लैंड्स होंगे जो कि हार्मोन्स रिलीज करेंगे। और लास्ट हमेशा आपके पास क्या होगा? आपका रिस्पॉन्स मीन्स आप क्या बिहेवियर शो करते हो। वो आपके ग्लैंड्स का बिहेवियर हो, वो हार्मोन्स रिलीज करें और हार्मोन्स के नतीजे में आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करे, और या वो आपकी बॉडी के मूवमेंट्स होंगे, मसल्स होंगे। क्लियर? सो सिस्टम, नर्वस सिस्टम हम उस वक्त से कह रहे हैं कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम इन द सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी में 2 सिस्टम्स होते हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज endocrine system or hormonal system. So what is the nervous system? We will discuss the endocrine system or hormonal system in detail in the upcoming classes. So what is nervous system? Nervous system controls the functions of every other system. Nervous system consists of, yes, do you have any idea? Nervous system consists of central nervous system or peripheral nervous system. So nervous system controls the functions of every other system. It communicates with bodily systems in order to coordinate performance and to provide the needs of the body from moment to moment. क्लियर? देखो, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही है ना आपकी पूरी बॉडी में, स्टिमुलस से लेके रिस्पॉन्स तक आपकी बॉडी में सिर्फ कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अगर हम अब प्रीवियस एग्जांपल्स को जहन में रखें, वो जो बॉल आपकी तरफ आ रही थी और या जो सैलिवेशन हो रही थी, सैलिवेशन में जो आपका मुंह में पानी आ रहा था फूड का स्मेल को सूंघ के, तो उस केस में देखो क्या है, द आई डिटेक्ट्स द मूविंग बॉल and sends the nerve impulses through the nervous system which stimulate the muscles to contract and producing the response. हो गया ना ये पूरा आपके पास एक पूरा एक स्ट्रक्चर कि इस पूरे केस में आपके पास क्या था? स्टिमुलस क्या हो गई थी? स्टिमुलस आपके पास क्या था? बॉल अप्रोचिंग टू यू। रिसेप्टर्स आपके क्या थे? ऑब्वियसली आई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यकीनन आपका ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड जिसने इंफॉर्मेशन रिसीव की। इफेक्टर्स इसमें क्या थे? आपके बॉडी के मसल्स थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट हुए, और रिस्पॉन्स क्या था? ऑब्वियसली आपने मूव किया। सेकेंड केस में क्या था? इन द केस ऑफ सैल्यूवेशन टू द स्मेल ऑफ द फूड, उसमें रिसेप्टर्स कौन से इन्वॉल्व थे? वो आपके ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन्स थे। ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन ऑफ स्मेल,
और यकीनन वो आपके पास क्या था, नोज। अब यानी देखो उसमें स्टिमुलस आपके पास क्या मिला है, दैट इज द स्मेल। रिसेप्टर क्या था आपके पास, नोज। ठीक है, आपका जो बॉडी कोऑर्डिनेटर है उसने इंफॉर्मेशन रिसीव की। इफेक्टर्स क्या थे, तो ऑब्वियसली अब उसमें देखो इफेक्टर्स क्या थे, इफेक्टर्स थे अब उसमें ग्लैंड्स। अब वहाँ पे इफेक्टर ग्लैंड्स थे। ठीक है, रीजन देखो मसल्स ने मूवमेंट किया था, बट जब सेलिवेशन हुई थी आपके मुंह में पानी आ गया था फूड के स्मेल को, फूड की स्मेल को स्मेल करके, तो ऑब्वियसली आपके ग्लैंड्स ने, जो सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं दैट आर फाउंड इन योर माउथ, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स आर फाउंड इन योर माउथ, तो ऑब्वियसली वो ग्लैंड्स ने सिलाइवा रिलीज किया था। तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन क्या हुआ था, रिस्पॉन्स क्या था, सेलिवेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? So the nervous system doesn't just allow responses to external stimuli. ठीक है, अभी हमने आपको बताया, it also coordinates and regulates many activities in response to changes within the body. ठीक है, वो हम नेक्स्ट, क्योंकि देखो ये सब हम एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं। अब इंटरनली वगैरह, इंटरनली आपका बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ एक्सटर्नल स्टिमुलाई को कैच नहीं करता, ऑब्वियसली वो आपके इंटरनल स्टिमुलाई को भी रिसीव करता है, रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, an increase in concentration of carbon dioxide in the blood stimulates the receptors, which send the nerve impulses to the diaphragm and intercostal muscles to bring about a change in the rate of breathing. Respiration याद आया? ठीक है, आपके ब्लड में इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई इन योर ब्लड, तो ऑब्वियसली आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसीव करेंगे, जो उनको और नर्व इम्पल्सेस भेजेंगे कहाँ पे, टूवर्ड्स द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ योर रिब्स, और वो कहा जाएगा कि मीन्स ब्रीदिंग रेट तेज़ करें। इसी तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेवल अफेक्ट्स द हार्ट रेट। ये आपका इंटरनल स्टिमुला, इंटरनल एनवायरनमेंट है जो चेंज हो रहा है। So students, the most important functions of the nervous system are as the following. The main importance of the nervous system is supplying the best adaptation of the organism to the influence of the environment and making its reactions as one whole thing. Normal interaction of the organism with the environmental conditions, making the behavior according to the conditions of the life. Combining and regulation of all functions of the organisms, means its organs, tissues, cells, intracellular structures, and starting actions of functioning, means contractions of the muscles. Okay, now divisions of the nervous system. Okay? This is the last topic, that is the divisions of the nervous system. Acha, before this, you know that all of the examples of the nervous coordination mentioned so far are automatic responses, which are not under the conscious control of the brain. These are known as involuntary or reflex actions. ये जो अभी हमने बताया ना ब्रीदिंग सिस्टम से रिलेटेड, ये आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस थे। अच्छा, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था दैट इज़ के वो कितने बॉल आ रही है और आप मूव हो गए, तो ऑब्वियसली वो वॉलेंट्री एक्शंस है। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एक्शंस, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शंस और वॉलेंट्री एक्शंस। तो जो ब्रीदिंग रेट है, जो आपका हार्ट बीट है, तो ये सब आपके, या जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन प्रोसेस है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं, दे ऑल आर इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शंस। क्लियर? अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शंस ऑब्वियसली जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते, विच आर नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, एंड दीज आर नोन एज इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, और जो बाकी एक्शंस हैं, जैसे ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कंट्रोल्स अ वाइड रेंज ऑफ अदर एक्टिविटीज़, जैसे मैनी ऑफ विच आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल बाय द ब्रेन, तो ऑब्वियसली वो वॉलंटरी एक्शंस हैं। अच्छा, मोस्टली जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं तो वो आपका ऑब्वियसली आपका वो विलफुल होते हैं, मीन्स आपके कंट्रोल में होते हैं, मीन्स आपकी मूवमेंट है या आपकी कोई और है जो भी थिंकिंग है, या जो आपका मोस्टली स्केलेटल मसल्स का होता है ना, उनको वॉलंटरी एक्शंस की तरफ लेके जाते हैं। बट जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, जो आपके मीन्स आप कॉन्शियसली आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। ठीक है, इनको हम और डिटेल में फिर प्रॉपर जब चैप्टर को नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे देन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। Now this is the division of the nervous system. Nervous system consists of central nervous system, peripheral nervous system. Central nervous system means brain and spinal cord. Peripheral nervous system means somatic nerves and autonomic nerves.
सोमैटिक नर्व सेंसरी एंड मोटर है, आ गया ना वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. सोमैटिक नर्व सेंसरी एंड मोटर है, ठीक है. आई टोल्ड यू सेंसरी nerves are those nerves that carry information from the sensory organs to the coordinator. it means के जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो आपके लेके जाए. अच्छा, पैरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो आपके सिर्फ वो नर्व्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो नर्व्स पर कंसिस्ट करता है. तो अगर सोमैटिक नर्व्स होंगे तो वो सेंसरी या मोटर होंगी, और अगर ऑटोनॉमिक नर्व्स होंगी तो वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक होंगी. सेंसरी एंड मोटर नर्व्स वॉलंटरी एक्शंस करती हैं, मींस आपके मसल्स की मूवमेंट हो गई, आपने कोई स्टिमुलर रिसीव किया एंड देन आपने अपनी मर्जी से उसके अकॉर्डिंग कॉन्शियसली काम किया, ठीक. तो आपकी बॉडी का एक्शन एंड रिएक्शन सेंसरी एंड मोटर नर्व के साथ हो रहा है, दैट इज़ वॉलंटरी, और वो सोमैटिक नर्व्स है. बट अगर जैसे अभी ब्रीदिंग रेट और हार्ट बीट की हमने बात की थी, या हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रिलीज हो रहा है, मीन्स अचानक एक एमरजेंसी हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो ऑटोनॉमिक नर्व्स हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी से नहीं हो रही. तो वो इनवॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट या सेपरेट नर्व्स होती हैं, वो उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है. बट जो उनका मेन एक ऑर्गन होता है वो, या जो मेन कोऑर्डिनेटर है वो आपके पास एक नर्वस सिस्टम में ऑब्वियसली वो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन ही है, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू अपने मैसेजेस को कन्वे करते हैं, ठीक है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स का सिस्टम है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम है. क्लियर स्टूडेंट? So students, this is it from today's class. I hope all the concepts that are related to the topic are clear to you. So see you in the upcoming Q&A session, and see you in the next class. Till then, thank you so much. Allah Hafiz.